sodium hydroxide and potassium hydroxide. Okay, NaOH, potassium hydroxide given. Moist silver oxide, right? But ये सब कौन से फॉर्म में चाहिए? Aqueous की alcoholic? Aqueous. Aqueous. All the reagent should be in aqueous form, right? Second reaction we have seen from alkene. Alkene में अपने दो type of reaction we have studied. एक था direct hydration of alkene using concentrated H2SO4, that is sulfuric acid, right? And the second method was using, see, at least respond, it should be two-way. Yes, diborane, B2H6, right? तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड आ गया तो whether you are going to apply Marconic, see दोनों reaction hydration ही है, मतलब addition of water ही है. But if they are giving you concentrated sulfuric acid, then which rule you are going to apply? Markovnikov ki anti-Markovnikov? Markovnikov. Yes, Markovnikov. And if it is using diborane, that is B2H6? Anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov, right? So we have seen both the reaction in the last class from alkyl halide, and second one was from using alkene, right? Now the third reaction, which is very important one. Using, we are going to obtain alcohol using Grignard reagent. What is the formula of Grignard reagent? Yes, Grignard reagent को आप general way से कैसे लिखते हो? How you represent Grignard reagent? R MgX. MgX. Here, this is the general representation of Grignard reagent. See, if I'm giving you alkyl halide, this reaction you have studied in HDA, halogen derivative, and I am treating it with magnesium metal. जब भी कोई भी metal के साथ हो, whether it is sodium metal or magnesium metal, alkyl halide का reaction metal के साथ होता है, तभी हमेशा arrow पे क्या आना चाहिए? Dry Ether. The reaction takes place in presence of dry ether only. Tell me, what is the product of this compound if I am reacting alkyl halide with magnesium metal? क्या form होगा यहाँ पे? Alkyl magnesium halide. Yes, very good. Grignard reagent will be formed, that is R MgX. R stands for alkyl. See, it can be even aryl. Alkyl, magnesium, and X stands for halide. Alkyl magnesium halide. It is an, so Grignard reagent is an organo. उसको Grignard reagent को Metallic compound. Metallic compound. Yes. ऑर्गेनो, क्योंकि R है इसलिए ऑर्गेनिक है, और मेटल है इसलिए ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड. तो व्हाट इज Grignard reagent? It is nothing but an organo metallic compound in which magnesium metal is bonded to one side on alkyl group and to other side to halide group. Is it clear? What is the charge on magnesium? Ma'am, can we replace Mg with any other metal? नहीं, only magnesium metal ही होता है. Grignard reagent मतलब magnesium metal सिर्फ. Magnesium पे चार्ज क्या होगा? What is the charge on magnesium? It is +2. हाँ, मतलब but +2. अभी यहाँ पे R पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव. बट यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो आप पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव नहीं दे सकते हो. सो वी पुट इट एज पार्शियल नेगेटिव, एंड ऑन मैग्नीशियम इट इज पार्शियल पॉजिटिव. Similar way on halide, what is the charge? -1. Partial negative. तो यहाँ पे partial positive, इसलिए यहाँ पे twice आ जाएगा. Is it clear? R और Mg में इस पे नेगेटिव रहेगा, इसमें पॉजिटिव. Mg और X में फिर से इसमें पॉजिटिव रहेगा और इसमें नेगेटिव रहेगा. So this part HDA में हो चुका है कि how you are going to form Grignard reagent. तो सिर्फ यहाँ पे आपको डेल्टा प्लस माइनस ये पता होना चाहिए, तो आगे का रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए.
See, if I'm writing, what are carbonyl compounds? जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कौन सा मैंने बोला था? हाइड्रोक्सिल मतलब कौन सा ग्रुप? OH. हाइड्रोक्सिल मतलब OH. If I'm saying carbonyl group, carbonyl मतलब कौन सा ग्रुप? C-OH. C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, ये वाला ग्रुप को कार्बोनिल बोला जाता है, ये वाले ग्रुप को हाइड्रोक्सिल. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन सा हो सकता है? इट कैन बी अल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, इट कैन बी carboxylic acid, even ester have this group, right? Anhydride C double bond O जिसमें भी रहेगा वो सब कार्बोनिल कंपाउंड्स बोला जाएगा क्योंकि उसमें C double bond O ग्रुप है. Here, if I'm taking the example, चलो अभी अपन aldehyde. What is the general representation of aldehyde? CHO. General representation. I'm not asking you the functional group. General represent कैसे करते हो आप aldehyde को? Yes, R C double bond O and H. Clear? If I'm treating it with Grignard reagent, अभी यहाँ पे अपन जनरल वे लिख रहे हैं, इसलिए I'm writing in the form of RMgX only. R can be any alkyl group, CH3 कुछ भी आप लिख सकते हो. अभी ये भी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही होगा. Now students try to understand. अभी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O में कार्बन पे we know O is more electronegative, तो O क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा. तो O पे चार्ज क्या आएगा? What is the charge on oxygen? Partial negative. It is partial negative. We know it is partial negative. ब्रेक नहीं हुआ है बॉन्ड या पूरी तरह से बॉन्ड ये नहीं हो गया. जब भी पूरी तरह से आएगा तो फुल्ली नेगेटिव उसके ऊपर आएगा. एंड व्हाट अबाउट कार्बन? इट इज पार्शियल पॉजिटिव. अब ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव तो मुझे पता चल गया. आई नो इन Grignard reagent on R the charge is partial negative and on Mg the charge is partial positive. Clear? अभी अगर कार्बोनिल ग्रुप को अटैक करना है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन कौन अटैक करेगा? हेलो मिस. बोलो मिस, आपने इसके पहले क्या बताया? फिर से बताओ ना. ये एल्डिहाइड के साथ क्या फिर से मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ मिस, वो सुना नहीं मैंने, सॉरी. मैं फिर से बताओ ना. Okay, aldehyde का representation we are doing it as RC double bond OH and I am reacting it with Grignard reagent or we can say alkyl magnesium halide के साथ react करें. तो पहला तो charge distribution पता होना चाहिए. In carbonyl group, oxygen is more electronegative, so it is going to pull the electrons towards itself, so it is going to get partial negative charge. And on carbon the charge is partial positive. In the same way, in Grignard reagent, that is RMgX, we know magnesium is electropositive, so we are going to put the charge partial positive, and on R the charge is going to be partial negative. If Grignard reagent is going to attack carbonyl group, तो कौन सा पार्ट अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन को कौन अटैक करेगा? मैग्नीशियम अटैक करेगा कि अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा? Alkyl group. सी मैग्नीशियम कैसे करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक होगा क्या? ये सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, अटैक वाला है. हाँ, R is going to attack this कार्बोनिल कार्बन. अगर R ने ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया है तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? ये कार्बन का ऑलरेडी इट हैज 1 2 3 4, वो स्टेबल है. अब ये 5 हो रहा है, तो 5 के वजह से क्या हो जाएगा? अभी सी कार्बन अल्काइल ग्रुप को तो छोड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन को भी छोड़ेगा नहीं, तो उसके पास दूसरा पॉसिबिलिटी है. ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे वो फॉल आउट करेगा. मतलब ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर आएगा और पूरी तरह से माइनस चार्ज आ जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. H क्यों नहीं छोड़ेगा? इतना इजी नहीं है हाइड्रोजन निकालना कार्बोनिल ग्रुप का. जब भी पॉसिबिलिटी रहता है तभी फंक्शनल ग्रुप्स एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप. फिर बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर वगैरह तभी हाइड्रोजन, फिर अल्काइल ग्रुप, वैसा वो ये हो जाता है सब्स्टिट्यूट. क्लियर? तो ये ऑक्सीजन पे चार्ज. तो अभी आपको कंपाउंड क्या मिलेगा? R is as it is. ये वाला R मैंने as it is लिखा. सिंगल बॉन्ड इज as it is.
O पे किसने अटैक किया है? फॉर अ टाइम राइटिंग इट एज R डैश, ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा, R डैश ने अटैक किया तो R डैश इधर आ जाएगा. दिस H इज एज इट इज. अभी O से डबल बॉन्ड का बना सिंगल बॉन्ड, O पे पूरी तरह से लोन पेयर फॉल आउट होके माइनस चार्ज आ रहा है तो O के साथ कौन जाएगा? MgX. ये बीच वाला कंपाउंड आपको समझा? इट इज एन अनस्टेबल या इंटरमीडिएट कंपाउंड. क्लियर? अभी अगर आगे जाके आई एम डूइंग द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, बट यूजुअली जब भी कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो वी पुट इट एज H3O+. क्लियर? अभी हाइड्रोलिसिस से इट इज नॉर्मल वाटर वाला ही हाइड्रोलिसिस, मतलब आपको H2O ही पकड़ना है, बट ये एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए H+. सो वी आर राइटिंग इट दिस वे. हेलो मिस. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस, देन यू कैन आस्क मी डाउट. ओके मिस, ओके मिस. कहाँ पे रिएक्शन होगा? वेदर इट इज बिटवीन R एंड C, C एंड R डैश, C एंड H की C एंड O के बिटवीन रिएक्शन होगा. कहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा? C और O के. The bond is going to break here. We know water का split up होता है H+ and OH minus. अभी O पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वाटर से वो क्या लेगा? H लेगा कि OH लेगा? H+. हाँ, तो यहाँ पे H गया तो OH कौन लेगा? कार्बन. तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा? व्हाट इज द कंपाउंड यू आर गोइंग टू गेट? द R is Primary alcohol. yes, C is as it is. It is not primary, dear. OH is as it is, H is as it is, R dash is as it is. ये समझा आपको? प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये रिएक्शन में? Mg. We know it is मैग्नीशियम इज डाइवैलेंट, तो 2 Mg के साथ ऑलरेडी H था, O के साथ OH आ गया. ये समझा आपको रिएक्शन? So from Grignard reagent, aldehyde, yes, aldehyde on reacting with Grignard reagent, तो aldehyde प्लस Grignard reagent के साथ अगर आप उसको ट्रीट कर रहे हो, Grignard reagent, then you will get the product can be alcohol, but it can be primary alcohol. सिर्फ एक ही केस होता है जब भी प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, बाकी यूजुअली इट सेकेंडरी अल्कोहल. इज इट क्लियर? aldehyde का रिएक्शन we have seen, aldehyde with Grignard reagent. ये जनरल रिएक्शन आपको समझा है? मैम प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ. वेरी गुड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ. सी ये लास्ट ईयर भी मैंने ये कंसेप्ट्स थोड़ा क्लियर किया था. सी ये ग्रुप का नाम क्या है? व्हाट इज दिस ग्रुप नोन एज? CH3C डबल बॉन्ड O. ये ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कार्बोक्सिलिक. आंसर दिया वो, कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको किधर वो C डबल बॉन्ड OH वाला दिख रहा है? मैंने यहाँ पे कौन सा ग्रुप लिखा है? एसिटाल्डिहाइड. हाँ, एसिटाल्डिहाइड. नहीं, I have not placed any functional group here. I'm just asking you the name of this group. यहाँ पे कोई functional group नहीं है फिलहाल तो. Name is partially correct. It is acid, right? या एसिटिल भी बोल सकते हैं या कोई एसिड भी बोलते हैं, दोनों नाम राइट है. ये ग्रुप का नाम एसिड है. अभी हाँ एसिड याद रखना है, या एसिटिल भी रखा तो भी, बट यहाँ पे आप फिलहाल एसिड याद रखो. अभी यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप मैंने प्लेस किया ये वाले एग्जाम्पल में? aldehyde. Yes, aldehyde, right? So the common name, we are talking about the common name, huh? The common name of this compound is acetaldehyde. acetaldehyde, right? If I'm putting ये ग्रुप मैंने कॉमन रखा CH3C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पे मैंने CH3 प्लेस किया, अभी यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया? Which is a functional group here? Ketone. Yes, ketone. So tell me the name of this compound. Acetone. Acetone. Acetone.
The common names we are deriving it out. Acetone, ये group है CH3 C double bond O सब में common. अभी यहाँ पे CH3 C double bond O OH मैंने लगाया. अभी what is the name? What is the functional group here? Alcohol. कहाँ से अल्कोहल? इतना कॉन्फिडेंटली आंसर दे देते हो. Carboxylic acid. Carboxylic acid. It is carboxylic acid, right? तो यहाँ पे इसका common name क्या आएगा? What is the common name? Acetic acid. Yes, very good. Acetic acid. Very good. It is acetic acid. acetic acid. अब जिसने इतना अच्छे से सुरीली आवाज में जो आंसर दिया है ना, अभी नेक्स्ट आंसर आप ही बताओगे. क्लियर? और वही सुर में देना. इतना पार्ट क्लियर है आपको? ये ग्रुप का नाम एसिड है. सो द कॉमन नेम्स, अगर एल्डिहाइड आ गया तो एसिटल्डिहाइड. फंक्शनल ग्रुप कीटोन आ गया तो कंपाउंड का नाम बनता है एसीटोन. फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो कंपाउंड का नाम बनता है एसिडिक एसिड. इन द सेम वे ये ग्रुप का नाम C डबल बॉन्ड O. Even I can put this H here also. कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये ग्रुप का नाम क्या है? The name of this group is formyl. Yes, formyl. Formyl. Yes. अभी the person जिसने एकदम सुरीली आवाज में इसका नाम बताओ क्या आएगा? आवाज बंद हो गया. क्या नाम आएगा इसका? कॉमन नेम क्या आएगा ये कंपाउंड का? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप हियर? Formaldehyde. Yes, it is aldehyde. So the name becomes formaldehyde. Clear? What is the functional group here? Yes, it is carboxylic acid. So इसका नाम क्या बनेगा? Which acid? What is the common name? Formic acid. Formic Formic acid. थैंक यू. फॉर्मिक एसिड. तो ये पार्ट क्लियर है. जब भी इसमें कीटोन बनेगा क्या? फॉर्माइल ग्रुप लेके आप कीटोन बना सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि कीटोन में हमेशा दोनों ग्रुप R होना चाहिए. हमेशा अल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, तभी जाके वो कीटोन बनता है. तो ये फॉर्माइल के साथ फॉर्माइल में हमेशा एक H तो होता ही है. तो अल्डिहाइड बनेगा या हेलो मिस. यस हेलो मिस. बोलो. मिस जो ऊपर रिएजेंट. Will you Hello, please miss. कि आपका आवाज मेरे पास क्लियरली आए तो I will be able to answer you. मिस अब आ रहा है? नहीं, मैं घर पे हूँ. अभी भी नहीं आ रहा है. हाँ? Now am I audible? Yes, you are audible, dear. अभी आपका डाउट पूछो. ओके मिस. ये ग्रीनलाइट और एल्डिहाइड क्या है? Do one thing. Put your doubt in the chat मिस box. MGX है ना मिस. मिस जस्ट 1 सेकंड मिस. मिस यहाँ पे RMGX जो है, यहाँ पे मिस अपने R को डेल्टा नेगेटिव और Mg को डेल्टा पॉजिटिव दिया है. मिस हैलाइड को आप कंसीडर नहीं कर रही हो मिस? हैलाइड को कर रही हूँ ना, यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ. ये दोनों के बीच में आई एम टेलिंग ना, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसमें Mg इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे है ना, उसपे भी माइनस है. नो डाउट उसमें माइनस चार्ज है. बट फिलहाल द अटैक इज फ्रॉम अल्काइल ग्रुप ओनली टू कार्बोनिल ग्रुप. वही बॉन्ड ब्रेक. एक छोटी सी रिक्वेस्ट मिस, अगर ये वाला रिएक्शन आप एक बार फास्ट में फिर से बता दोगी मिस? हाँ, मैं बता दूंगी. बाकी पहला ये सबको क्लियर है क्या? ये वाला पार्ट कि कॉमन नेम्स आना ही चाहिए, बिकॉज इन द एग्जाम मेनी टाइम. वो क्लियर है मिस. Okay. Now you can mute your mic so that other students can hear me properly. ठीक है? I will explain the whole reaction again. See, this part should be clear because sometimes in the exam they directly give you the common names: acetaldehyde, acetone, acetic acid, formaldehyde or formic acid. तो आपको उनका common names पता होना चाहिए. तो अगर ये रिएक्शन आपको अल्डिहाइड वाला इजीली समझ में आ गया है तो कीटोन भी बहुत इजीली होगा. To the person who is having doubt, we'll see the ketone reaction first
फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन कैसा है? हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग कीटोन? R R C double bond O R. So this is the general representation of ketone. Even if I am treating it with Grignard reagent, I'm putting it as R dash so that it will be easy for you to understand. Grignard reagent के साथ treat किया। See students, dry ether compulsory आना चाहिए एरो पे, क्लियर? तो अभी कीटोन के साथ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट कर रहे हो, फिर से रिएक्शन में सेम पार्ट में आप जाओगे। आई नो द चार्ज ऑन कार्बोनिल ग्रुप इज डेल्टा पॉजिटिव एंड ऑन ऑक्सीजन इट इज डेल्टा नेगेटिव। आर पे डेल्टा पॉजिटिव है, एमजी पे डेल्टा नेगेटिव है। अभी आर किस पे अटैक करेगा? सेम वे कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आर इज एज इट इज, सिंगल बॉन्ड सी इज एज इट इज, ये वाला आर भी एज इट इज है। यहाँ पे अटैक किया है आर डैश ने, अल्काइल ग्रुप ने, ऊपर हो गया ओ। ओ के बाद क्या आएगा? पर प्लस आएगा ना? हाँ mg पर डेल्टा प्लस आएगा ना? हाँ एम जी, हाँ बराबर प्लस आएगा, इधर माइनस है। तो O के साथ जाएगा O MgX, the intermediate compound which we are getting. इसका आगे जाके हाइड्रोलिसिस करोगे। If I'm doing the hydrolysis, acid hydrolysis, so H3O plus, same way RC, this R dash is as it is, R is as it is, and यहाँ पे OH आ जाएगा plus MgX and OH। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, राइट? तो कीटोन का अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हो, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? What is the product of the ketone? Formaldehyde and From where you are getting formaldehyde? No, sorry. Am I taking formaldehyde? sorry for Which alcohol it is? Three carbon primary monohydrate? alcohol. Third degree alcohol. It is 3 degree alcohol. Degree alcohol. Tertiary alcohol. So it is tertiary alcohol, right? So see, aldehyde का अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हो तो यू अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सभी अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल ही देगा ग्रिग्नार्ड के साथ। इन द सेम वे कीटोन का रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हो तो you will get the product as tertiary alcohol. Is this reaction clear to you? मिस एक शॉर्ट डाउट था, वो ड्राई ईथर क्या करते हैं एक बार बताओ ना, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा। ड्राई ईथर का कोई रोल नहीं है, इट इज एक्टिंग एज जस्ट सॉल्वेंट हियर। वो सॉल्वेंट का रोल प्ले आउट कर रहा है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है। ओके ड्राई ईथर लिक्विड है या पाउडर है? ड्राई ईथर में पानी नहीं होता, उसमें से पानी उन लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन लिक्विड रहता है। हाँ, तो ये कीटोन वाला रिएक्शन आपको समझा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ वो 1 डिग्री बनाता है। यस, ओनली फॉर्मल्डिहाइड है जहां पे वो 1 डिग्री देगा, बाकी सभी अल्डिहाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप ट्रीट करते हो तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। सो नाउ स्टूडेंट्स सी, यहाँ पे एक ये है, जब भी आप कीटोन का रिएक्शन करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, राइट, द क्वांटिटी should be always in equimolar. तो आप जब भी एक्सप्लेनेशन दोगे ये रिएक्शन का इन द एग्जाम, सी मेनी अ टाइम्स बोर्ड का रूल होता है, अभी यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाई वी आर गोइंग टू टेक क्यों इक्विमोलार क्वांटिटी में लेना है। इक्विमोलार मतलब अगर ये 5 ml लिया तो ये भी 5 ml लेना है, एक्सिस लेके नहीं चलेगा। क्यों एक्सिस लेके नहीं चलेगा या आप मुझे बताओगे? क्लियर? तो कीटोन, तो जब भी यू आर गिविंग द एक्सप्लेनेशन, इफ इन द एग्जाम 70 मार्क्स का पेपर है, यू नो 30 फॉर प्रैक्टिकल्स, राइट? अगर आपको 65 प्लस या 60 प्लस मिलता है, मतलब आप
ज्यादा स्कोर करते हो केमिस्ट्री में, तो दे सी ईच एंड एवरी वर्ड वेदर यू हैव मेंशन इट आउट और नॉट। तो यूजुअली इक्विमोलर वर्ड के लिए बोर्ड्स में हाफ मार्क दिया जाता है। तो ऐसे लिखना जरूरी है, कीटोन ऑन रिएक्टिंग विथ Grignard reagent in equimolar quantity gives tertiary alcohol. Why equimolar is necessary? You are going to tell. Is it clear? The equimolar word compulsory आपके explanation में आना ही चाहिए. Ketone on reacting with Grignard reagent in equimolar quantity gives tertiary alcohol. क्या ड्रॉबैक है अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा एक्सिस में ले लिया तो क्या हो सकता है? वो कंटिन्यू होएगा रिएक्शन आगे भी, कंटिन्यू होके क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जो थर्ड डिग्री अल्कोहल है वो और आगे होगा। क्या होगा वही तो चाहिए ना, क्या होगा? ओके दोस्त, फर्स्ट यू विल सॉल्व दिस एग्जांपल एंड टेल मी। सी बोर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। 2 मार्क्स के लिए रिएक्शन आ गया तो ड्राई ईथर कंपलसरी मेंशन करना है, आपको इंटरमीडिएट दिखाना है, हाफ मार्क फॉर इंटरमीडिएट, और फुल रिएक्शन के लिए 1 मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ पे आप मार्क्स लूज करोगे अगर डायरेक्टली आप ये दोनों को रिएक्ट करके ये वाला प्रोडक्ट देते हो। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड जहां पे भी आता है यू आर सपोज टू मेंशन इट आउट। ये कंप्लीट करो रिएक्शन, चलो। Complete this reaction. Yes, Devika, what is the answer you have got? क्या मिला प्रोडक्ट? Be fast, tell me the answer. Isopropyl alcohol. I've asked specifically, you can give the answer, but Devika is there in the group? Yes, Devika. Hello, ma'am. Yes, what is the answer you have got? Tell me. Ma'am, I'm solving it. Okay, fine. Be fast. Yes, ma'am.
completed. हाँ मिस, क्या मिला प्रोडक्ट? मिस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और MgX Very good. Intermediate, pehla you must have got CH3. I know this is delta negative, this is delta positive, this is delta negative, this is delta positive. तो मिथाइल ग्रुप अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज CH3 is as it is, C is as it is, ये वाला H मैंने as it is लिखा है. डबल बॉन्ड का बना सिंगल बॉन्ड O के साथ गया, MgBr अटैक किया था CH3 ने, राइट. इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला मुझे, उसका आगे जाके हाइड्रोलिसिस होगा एंड द प्रोडक्ट विल बी CH3 COH H और ये वाला CH3 आई एम प्लेसिंग इट अबव, सो इट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल. Is it clear? Same way, try the reaction for this compound and tell me the name, IUPAC name of the final product. Hello? Is my screen visible? हाँ अभी आप Yes, miss. It is. नहीं मैम ठीक था. रिएक्शन ट्राई करो. चलो फाइनल प्रोडक्ट का नाम बताओ. Yes, Balaji, you have completed the reaction. हाँ एक मिनट. हाँ. हो गया मिस. क्या मिला आपको? मैम वो 2 मिथाइल. Tell me the IUPAC name. वो ब्रांच है मिस. एक मिनट. ठीक है, ब्रांचिंग एक करो. मिस 2 मिथाइल ब्यूट टू ऑल. 2 मिथाइल ब्यूट टू ऑल. 2 मिथाइल. हाँ 2 मिथाइल ब्यूट टू ऑल. ओके. हाँ ये मिला. See, this is the longest chain you must have selected, right? So 1 2 बराबर ना? हाँ 3 4. So 2 पे मिथाइल ग्रुप है, so it is 2 मिथाइल. Then ब्यूट टू ऑल. whether it is but to all या butane to all. But We are replacing E ना? ब्यूटेन. हाँ Butane to ऑल.
सबको मिला ये कंपाउंड? Yes. Yes, miss. हाँ, सी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी या बोर्ड्स में आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। नो डाउट यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स जब भी आप ड्राई ईथर लिखोगे, फिर आप इंटरमीडिएट कंपाउंड लिखोगे, फिर फाइनल कंपाउंड, सभी राइट रहेगा तो वी गिव द फुल मार्क्स, राइट? बट इन योर नीट एग्जाम या जे नो वन इज गोइंग टू सी द स्टेप्स, राइट? इफ एट ऑल दे आर आस्किंग यू, अगर ये दोनों में उन्होंने पूछा this react with this and what is the final product, so within a fraction of seconds if you want to give the answer तो डायरेक्ट, बट ये शॉर्टकट बोर्ड्स में अप्लाई नहीं करना है। सी पहला अल्डिहाइड, ये वाला ग्रुप कंपाउंड देखो, दिस कंपाउंड में CH3 इज एज इट इज, राइट? तो प्लेस इट एज इट इज। C एज इट इज है, H एज इट इज है, जहां पे डबल बॉन्ड है O है उसको OH कर दो, और जो भी ग्रुप इसके साथ है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ है, अल्काइल ग्रुप, उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो दैट विल बी योर फाइनल कंपाउंड। Yes. आर यू गेटिंग? हाँ मिस। हाँ, तो बोर्ड्स में अगर सॉरी एग्जाम्स में, नीट में या जेई में आपको ये करना है तो क्या करना है, ये ग्रुप एज इट इज प्लेस करो, ये ग्रुप एज इट इज प्लेस करो, जहां पे डबल बॉन्ड O है वहां पे OH लिखो, और जो भी अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ है, जो भी ग्रुप है, whether it is alkyl or aryl, place it with the carbon atom, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप। समझ में आ गया आपको? These 2 alkyl groups are from ketone और this alkyl group is from Grignard reagent। तो ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपको आंसर आपका क्रॉस चेक करना भी रहेगा, whether you are right or wrong, you can cross check it in this way। Clear? Yes, miss. Ma'am, hello ma'am. Yes. Ma'am, show me the previous page. Okay. Thank you, ma'am. Ma'am, can you show the upper part? Yes, wait, let me write down the question so that other people can solve, then I will show you। Okay, miss. यस, कन्वर्ट करो बेंजल्डिहाइड को डाइफिनाइल मिथेनॉल में।
क्वेश्चन आपने कॉपी डाउन किया? कॉपी इट आउट एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट. जिसको पहला वाला पेज चाहिए था. मैम 1 मिनट क्वेश्चन बताओ ना. हाँ मैम. Completed question. You're going to tell me the conversion, ना आपने कैसे कन्वर्ट किया. ये कॉपी डाउन किया जिसको चाहिए था फ्रंट पेज का अपर पार्ट. यस मिस. मिस एक मिनट, मैं इसके प्रीवियस पेज दिखाओ ना, फर्स्ट वाला. ओके मिस. क्योंकि फर्स्ट वन किसने सॉल्व किया? इसका कंप्लीट हो गया फर्स्ट वन. नो वन. Okay, what is the structure of benzaldehyde? At least tell me. What is the structure? Benzene ring. Benzene ring. Aldehyde group. Aldehyde group. Yes, it should be attached to aldehyde group, that is C double bond OH. इतना तो सबको पता है, right? Okay, can anyone tell me what is the structure of diphenyl methanol? दो बेंजीन रिंग और बीच में ऑक्सीजन. Very good. दो बेंजीन रिंग रहेगा. I have said diphenyl मतलब दो बेंजीन रिंग होना ही चाहिए. तो एक तो है बेंजीन रिंग. Even I have second benzene ring. Okay, then दोनों बेंजीन. CHOS. मैम आपका स्क्रीन फ्रीज है. अभी हो गया? हाँ मैम. Okay, CHOH. Clear? So it is C. C stands for methane. एक कार्बन है इसलिए मीथेन. एक कार्बन को OH ग्रुप अटैच है इसलिए मीथेनॉल. और वही कार्बन को दो बेंजीन रिंग अटैच है. इट इज कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट. सो अपन बोल रहे हैं डाइफिनाइल मीथेनॉल. नाम ऐसा डिराइव होगा. अगर आपको ये वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहला मीथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनॉल इज CH3OH. इतना तो समझा पेरेंट. बट अभी उन्होंने डाइफिनाइल बोला मतलब इसको ही अटैच रहेगा. तो डाइफिनाइल मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स आपको रिप्लेस करना है बेंजीन रिंग से. तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा. तो अभी ये तो क्लियर है कि बेंजल्डिहाइड से मुझे डाइफिनाइल मीथेनॉल जाना है. क्या कन्वर्शन करोगे, कैसा करोगे बोलो? कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे? Benzene MgX. बेंजीन वाला. टेल मी द स्ट्रक्चर. क्या क्या कौन सा ये लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? Benzene. MgX. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. इट इज कमिंग एज उसको बेंजीन नहीं बोलोगे आप, फिनाइल बोलोगे. बेंजाइल मैग्नीशियम हैलाइड. बेंजाइल इज डिफरेंट. सॉरी, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड. वेरी गुड. इट इज फिनाइल मतलब फॉर मतलब इजी पर्पस लिखने से. तो आई एम राइटिंग इट एज C6H5. आप बेंजीन रिंग भी ड्रॉ कर सकते हो. मैग्नीशियम आप क्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो, आयोडाइड ले सकते हो. कुछ भी लो तो भी चलेगा. हलाइड ग्रुप मैटर नहीं करता है. आई एम टेकिंग क्लोराइड. इज इट क्लियर? ये रिंग ही है, उसको आपने ऐसा रिप्रेजेंट किया रहेगा तो भी चलेगा. इट इज राइट. C6H5 MgCl. Is it clear?
The reaction you are going to take place in presence of dry ether. Same way आप वैसा ही जाओगे. अभी ये दोनों में बेंजीन रिंग पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे सेम एज इट इज डेल्टा, तो ये फिनाइल रिंग ही इसको अटैक करेगा. तो ये वाला पहला वाला रिंग इज एज इट इज, C इज एज इट इज. C पे H है वो मैंने बाजू में लिख दिया, उसको अटैक किया फिनाइल रिंग ने, तो उसको बाजू में लिख दिया फिनाइल. और O के साथ गया Mg और Cl. आगे जाके सेम वे इंटरमीडिएट कंपाउंड को करो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. यहाँ पे होगा H will be taken by this, OH will be taken by carbon. तो both the ring is as it is. आप C6H5 करके लिखा तो भी चलेगा. CH ऊपर जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा another ring. Is it clear? Any doubt in the reaction? Right now let me know. No, बाद में जाके बोलना नहीं मैम. पेज टर्न करो, नहीं समझा फिर से एक्सप्लेन करो. ये रिएक्शन सबको क्लियर है? वो H3O कैसे आया? H3O प्लस वो एसिड हाइड्रोलिसिस है रे. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. H मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब H2O ही ऐड करना है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. ओके. तो जब भी आप ये n नंबर सॉल्व करके देखोगे तभी से ये सेम रिएक्शन किधर आएगा, अल्डिहाइड कीटोन में आएगा. अभी अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है. द सेम रिएक्शन विल कम इन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. आर यू गेटिंग? तो ये सब टॉपिक्स को रिलेटेड है. सेम रिएक्शंस रिपीट होगा, तो एक ही बार कंसेप्ट क्लियर करो. व्हाट एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट होके क्या मिलता है. मिस ड्राई ईथर का फिर से बताओ ना. ड्राई ईथर का कोई रोल नहीं है बेटा, वो सिर्फ एज अ मतलब वो कैसे हुआ, कैसे होता है मतलब वो उसमें का मतलब ड्राई ईथर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट. ईथर में जिसमें पानी नहीं होता है, जिसमें पानी निकाल लिया जाता है, उसको बोलते हैं ड्राई ईथर. एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन गूगल इट आउट. आपको पूरा आई इंफॉर्मेशन. मिस वो CH कैसे आया वो फिर से बताओ ना. कौन सा CH? ये वाला? हाँ वो कौन सा वो? ये हाँ वही आपने जो पेन पे मार्क किया था वही. ये तो इसका C मैंने यहाँ पे C लिखा है, वही H बाजू का मैंने H लिखा है. O का बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया है, तो O के साथ कौन जाएगा? O के साथ MgCl चला गया. और ये कार्बन को अटैक किसने किया है? फिनाइल रिंग ने. तो यहाँ पे मैंने बाजू में फिनाइल रिंग लिखा. आगे जाके हाइड्रोलिसिस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O के साथ H जाएगा, इसके साथ OH आ जाएगा. तो यू आर गोइंग टू गेट द कंपाउंड एज डाइफिनाइल मिथेनॉल. क्लियर? हाँ मिस. Okay, for the next reaction, yes, Rushikesh Chauhan, tell me the structure of acetone. Yes, Rushikesh Chauhan. स्ट्रक्चर बताओ एसीटोन का. बी फास्ट. Are you able to hear me? Yes, Rushikesh. Okay, very good. माइक नहीं चालू हो रहा है. Yes, Shubhangi Dubey, tell me the structure. Tell me the structure of acetone. Be fast. Shubhangi. Are you facing the same problem? बोलो एसिडोन का स्ट्रक्चर बताओ फटाक से. मिस CH3. ओके. फिर C.
C. फिर CH3 फिर डबल बॉन्ड O. Oh, okay. So you have got the structure of acetone. Product में मैंने क्या बोला? What is the structure? क्या आएगा structure बोलो? It is 2-phenyl propane to all. बराबर? Propane बोला Yes, मतलब कितने miss. कार्बन्स? Miss, Propane stands for how many carbon? Miss 3. 3. So 3 carbon you are going to place. I have Yes. specified it out as propane to all, right? तो propane Yes. to all है मतलब second position पे OH group रहेगा. Yes, miss. And in the same position, which group will be attached? 2-phenyl बोला है मतलब phenyl किधर जाके अटैच करोगे? Miss second position पे. सेकेंड पोजीशन पे ही फिनाइल ग्रुप भी अटैच होगा. बराबर? Yes, miss. So tell me which Grignard reagent you are going to use even for this purpose. अगर ये कन्वर्जन पूछा तो कौन सा Grignard reagent यूज होगा? Miss dry ether. But I'm not asking you solvent. I'm asking you the name of Grignard reagent. इसको किसके साथ रिएक्ट करोगे? Miss magnesium शायद. शायद मैग्नीशियम. Anyone else can help her out? किसके साथ रिएक्ट? Magnesium halide. Phenyl, same reaction it was. Phenyl मैग्नीशियम halide के साथ ही रिएक्ट करना है. फिर जाके सेम आप 3 स्टेप रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा. दिस CH3 एज इट इज C. O के साथ जाएगा MgCl. आप कोई भी हलाइड यूज कर सकते हो. ये CH3 एज इट इज और इसको अटैक किया था फिनाइल रिंग ने ये कार्बन को, तो नीचे से आएगा फिनाइल रिंग दैट इज C6H5. फॉर द कन्वीनियंट पर्पस आई एम राइटिंग इट एज C6H5. आपको रिंग चाहिए तो आप रिंग भी ड्रॉ कर सकते हो. आगे जाके हाइड्रोलिसिस होगा एंड इन द सेम वे क्या होगा हाइड्रोलिसिस में? CH3 एज इट इज, C के साथ आ जाएगा OH, CH3 एज इट इज और नीचे लगेगा रिंग प्लस MgOHCl. Are you getting? Students, see to it. n नंबर सॉल्व करते जाओ. सी एक ग्लांस में आपको मे बी रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा उसको समझने में, बट एटलीस्ट राइट आउट. जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और अल्डिहाइड का, अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके आपको क्या मिलता है देखो. क्लियर? जब भी सॉल्व करते जाओगे तभी ही कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, नहीं तो एट अ ग्लांस इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. Is it clear? Yes, miss. Okay. Now last question. Miss, Convert. सुनो ना. Hello, miss. एक मिनट, let me ask. Write down. Convert. नहीं ऐसे नहीं लिखो, sorry. Write down. How will you obtain? How will you obtain? How will you obtain ethanol? How will you obtain ethanol from corresponding अल्डिहाइड और कीटोन? वो आपको डिसाइड करना है whether it is aldehyde or ketone. How will you obtain ethanol from corresponding aldehyde or ketone? Yes, किसको डाउट था पूछो. हाँ मिस, वो Cl की जगह पे और भी कुछ यूज कर सकते हैं, अपने ऊपर है ना. क्या? वो मैग्नीशियम हलाइड है वो जो मिस. हलाइड, हाँ Cl की जगह पे आप Br ले सकते हो. आप क्या बोल रहे हो? आप दूसरा भी ले सकते हो. नो. ओके मिस, वही डाउट था.
Is my screen visible to you? Yes, miss. Okay. मिस मिस वो आपने आपने जो क्वेश्चन डिक्टेट किया वो नहीं दिख रहा है, मतलब प्रीवियस पेज है। प्रीवियस जो मैंने डिक्टेट किया वो लिखा नहीं है रे। हाँ तो फिर नहीं, बराबर है फिर। मिस वो आपने दो ऑप्शन कौन सा दिया था, एक एसीटोन और दूसरा? I'm not getting you. एक मिनट। हेलो मिस। Yes. हाँ, आपने दो ऑप्शन कौन से दिए थे, वो एसीटोन और दूसरा? How will एसीटोन नहीं दिया था मैंने, अल्डिहाइड और कीटोन दिया था। अल्डिहाइड और कीटोन, ओके। मिस अल्डिहाइड कीटोन दोनों में 2 कार्बन पहले आ जाते हैं, फिर वो See, you're going to decide it out whether मैंने आपको कंपाउंड दिया, I have given you the compound as ethanol. हाँ हाँ, इथेनॉल मैंने दिया है और मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है इथेनॉल CH3, it is CH2OH, बराबर ना? यस मिस। हाँ, I have asked you कि कौन सा अल्डिहाइड या कीटोन हम यूज कर सकते। सी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यूज करना ही है, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ मैम, पर वो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में 2 कार्बन पहले आ जाते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन में एक और आके जुड़ेगा तो अल्डिहाइड में आते हैं क्या 2 कार्बन्स? एक see the reaction is using Grignard reagent only. ओके। कौन सा अल्डिहाइड लिया आपने या कीटोन लिया? Can anyone tell me? Formal. Very good. Formaldehyde की, yes, you can only take formaldehyde. उसके अलावा कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सी यहाँ पे CH2 मतलब ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिला है, तो डेफिनेटली इतना ही एक ही कार्बन है आपके पास। तो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप का तो एक कार्बन होता ही है और बाजू में 2 कार्बन रहेगा। क्लियर? तो 3 कार्बन, तो ये तो पॉसिबिलिटी गया। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में ही 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन एटम्स है। एंड योर कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यू विल ट्रीट इट आउट? मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। वेरी गुड। हाँ, मिथाइल वाला ही यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये प्रोडक्ट इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल मिलेगा। इट विल बी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यूज करो, ब्रोमाइड यूज करो, आयोडाइड यूज करो, कुछ भी यूज करो चलेगा। जस्ट आई एम राइटिंग आउट द स्प्लिट अप ऑफ दिस रिएक्शन। इसको इसके साथ ट्रीट किया तो क्या होगा? मैग्नीशियम, आई नो इट इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, तो ये मिथाइल ग्रुप इज गोइंग टू अटैक दिस कार्बोनिल, बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट H इज एज इट इज, C इज एज इट इज, H इज एज इट इज, यहाँ पे OMgCl बनेगा और यहाँ पे मिथाइल ने अटैक किया है, तो आप यहाँ पे बीच नीचे लिख सकते हो। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा रिएक्शन। आगे जाके हाइड्रोलिसिस, दैट इज H3O प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। और अभी ये CH3 आई एम प्लेसिंग इट आउट हियर, दिस CH3 ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, तो CH3 ये बन गया CH2, ऊपर आ गया यहाँ पे, आई नो H जाएगा OH आएगा, तो OH प्लस MgCl and OH. Are you getting? So in the exam they may ask you question, how will you obtain ethyl alcohol from corresponding aldehyde या ketone? तो पहला ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर थिंक ऑफ इट कि इसके पास 2 ही कार्बन है, मतलब ये तो ग्रुप ग्रिग्नार्ड के पास से आ रहा है, मतलब इसके पास एक ही, तो ऐसा एक ही कंपाउंड है जिसके पास सिर्फ एक कार्बन है, एंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? मैम हेलो। बोलो। मैम सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा ना पर? हाँ, कैसे दे सकता सेकेंडरी है? अल्कोहल पर कीटोन देगा ना? नहीं दे सकता है ना, क्योंकि कीटोन में ये भी R है
दोनों R है बराबर, यस और नो? यस हाँ, और आपका Yes. मैग्नीशियम हैलाइड है तो ये R इधर आ रहा है ना डियर, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा? मिनिमम 3 ही होगा, तो इट विल डेफिनेटली गिव ओनली टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर? यस मैम। तो अल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल होगा बट ओनली इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, बाकी सभी अल्डिहाइड आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही देगा। ओके, इज दिस रिएक्शन क्लियर? मैम हेलो। यस मैम वो आपने जो मतलब कौन किसको अटैक कर रहा है वो दिखाया ना, वो एग्जाम में लिखते समय वो दिखाना है क्या? नहीं, अटैक नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, इट मींस यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन, चलेगा। हाँ, और वो पार्शियल और चार्ज का वो दिखाना है ना? नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ आपको मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सी जब अभी हाँ, एग्जाम में तुरंत क्लिक होने के लिए आप ये पार्शियल वगैरह ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपको पुट ऑन करना ही है, बट इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्लियर? हाँ। Moving further, next reaction. See, पहला reaction we have seen from alkyl halide. Second one was sulfuric acid plus diborane देखा. तीसरा reaction अपन ने देखा Grignard reagent using aldehyde or ketone. The next reaction by reduction of aldehyde, by reduction of aldehyde or ketone. See, before understanding this part, आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, see this chart will be useful for you for aldehyde ketone as well, तभी ये दिया नहीं जाएगा आपको याद। प्राइमरी अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हो the product will be aldehyde. Aldehyde on further oxidation gives you, क्या देगा? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ, या दूसरा वे बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट, वेरी गुड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो अल्डिहाइड, हेलो, ओके, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मिलके आपको क्या मिलेगा? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अगर आप अभी उल्टा जा रहे हो, वी आर गोइंग रिवर्स, तो क्या मिलेगा? इट इज विच रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा ना? हाँ, ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसको ही क्या बोलते हैं अपन? रिडक्शन। बराबर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स यू aldehyde. Aldehyde on reduction gives you Primary. alcohol. Primary. Alcohol, but be specific. It should be always which alcohol? Primary. Primary alcohol. Clear? In the same way, secondary alcohol on oxidation क्या देगा? Ketone. Very good. It will be ketone. Secondary alcohol on oxidation gives you ketone. See, under normal condition, ketone का further oxidation नहीं होता है. Only we have one reaction. I don't know whether you are having it in this here portion, but haloform reaction करके उसमें ही ketone का further oxidation carboxylic salt of carboxylic acid में होता है. But फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स यू secondary alcohol. Yes, it will be secondary alcohol. और
tertiary alcohol अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कोई भी नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में, तो क्या लिखना है? नो रिएक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये चार्ट आपको क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम। सी नॉर्मल कंडीशन में टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे तो नहीं होता है, बट अगर आप कोई स्पेशल कंपाउंड रिएजेंट यूज कर, दिस वी आर गोइंग टू सी इन रिएक्शन पार्ट ऑफ अल्कोहल में ये स्टडी करोगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या पाउडर कॉपर अगर आप यूज करते हो एट हाई टेम्परेचर 553 केल्विन पे, तभी जाके ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होके आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन। तो ये चार्ट नोट डाउन करो। ये कंपल्सरी आपको दिमाग में फिट करके लेना है कि प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड, वाइस रिवर्स में कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स यू अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल, secondary alcohol on oxidation gives you ketone, ketone on reduction gives you secondary alcohol. मिस उसका रिडक्शन नहीं होता? किसका? किसका? यस बोलो। कंप्लीट हो गया? एक मिनट। उसी के साथ साथ नॉर्मल रेड्यूसिंग, आपने अभी तक कौन से रेड्यूसिंग एजेंट स्टडी किए? डू यू नो द नेम्स? नॉर्मल जो रेगुलर यूज में रिएक्शंस में दिखाई दिया जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट्स। कैन एनीवन टेल मी वन एग्जांपल? जिंक। यस जिंक। वेरी गुड, वो भी रिडक्शन में यूज करता है बराबर। और KMnO4। KMnO4 वो ऑक्सीडाइजिंग है। राने निकल आपने सुना है? हाँ। इवन राने निकल इज यूज्ड एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। सो राने निकल के साथ मैंने एक और लास्ट ईयर बताया था, लिंडलास कैटलिस्ट, याद है? पैलेडियम था। प्लैटिनम और पैलेडियम। हाँ लो टेम्परेचर में। हाँ वो लिथियम का भी एक कंपाउंड था ना? हाँ ये मैंने बताया था, याद है? प्लैटिनम और पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में रहेगा और पॉइजनिंग सल्फर, बट ये रिएजेंट को बोला जाता है लिंडलास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम। हेलो मिस। यस मिस आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। ब्लर है? बराबर है। यस मिस। बराबर तो है। ओके बराबर है। क्लियर है? हाँ मैम। ओके फाइन। तो ओके, तो ये राने निकल भी एक्ट हो सकता है। सिर्फ निकल आया एरो पे तो भी वो रेड्यूसिंग एजेंट ही रहेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ राने। निकल दिखाई दिया, प्लैटिनम पैलेडियम दिखाई दिया तो भी इट इज एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ज्यादा फेमस है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम H4 है इसलिए हाइड्राइड, ठीक है। इन द सेम वे वी हैव सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्रोजन खुद भी ना, H4 है ना इसलिए हाइड्राइड। नहीं हाइड्रोजन भी रेड्यूसिंग है ना? हाँ सिर्फ हाइड्रोजन? सिर्फ हाइड्रोजन नहीं एक्ट करेगा, उसके साथ कोई तो भी लगेगा, निकल लगेगा या प्लैटिनम पैलेडियम और H2 लिखते हैं फिर, मतलब वो हाइड्रोजनेशन रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना, तो H2 लिखेंगे, क्लियर। बट कोई तो भी रेड्यूसिंग एजेंट लगेगा। तो ये सब राने निकल, प्लैटिनम पैलेडियम, लिथियम और बहुत सारे हैं। इवन यू कैन हैव सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल,
ये मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल या सोडियम इथेनॉल है, इवन इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और किसी को पता है रिड्यूसिंग एजेंट्स में? लिथियम हाइड्राइड। हाँ, सिर्फ लिथियम हाइड्राइड। आपका आवाज जोर से नहीं आ रहा है। LiH लिथियम हाइड्रेट बोल रहे हैं। नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। सिर्फ लिथियम हाइड्राइड नहीं है मैम। कंपाउंड स्टेबल भी होना चाहिए, आप कोई भी कंपाउंड को नहीं बोल सकते हो। तो नॉर्मली आप इतना याद रखो, ये सब जो रेड्यूसिंग एजेंट्स, इसमें और लिस्ट बढ़ाना है बाद में, बट अभी फिलहाल इतना याद रखो। क्लियर? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट्स, आई एम लेटिंग यू नो। अभी यहाँ पे कौन सा आ सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज KMnO4। हाँ, अल्कलाइन और एसिडिक दोनों भी चलेगा। KMnO4, KMnO4 एरो पे आ गया, मतलब इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इवन वी हैव K2Cr2O7। इज इट क्लियर? yes. Even dilute H2SO4, dilute HNO3, they all are acting as a oxidizing agents. Students, is it clear? Yes, ma'am. हेलो मैम, HCl को इसमें ऑक्सीडाइजिंग मानेंगे? ऑक्सीजन नहीं है लेकिन वो डोनेट करता है। मैम, HCl को मानेंगे क्या इसमें ऑक्सीडाइजिंग? नहीं, HCl इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ नॉर्मल डाइल्यूट H2SO4 एक्ट करता है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक्ट कर रहे हैं। HCl भी तो H+ डोनेट करता है ना मैम? वो एसिड है इसलिए H+ डोनेट करता है ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ तो हाइड्रोजन। HCl के पास ऑक्सीजन है? नहीं मैम, वो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब भी ऑक्सीडेशन होता है ना। एडिशन। हेलो, हाँ मैम। हाँ बोलो। मैम, वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तभी भी ऑक्सीडाइजिंग मानते हैं ना? ऑक्सीडेशन मतलब क्या? वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी एक होता है ना मैम वो। हाँ तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? वही कंफ्यूजन। हाँ, लॉस। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाँ, तो वो H+ जब आयन देते तो लॉस होता है ना मिस इलेक्ट्रॉन। बट ऑक्सीडेशन कैसे होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाँ 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 मिस। इसमें मैग्नीज ऑक्साइड नहीं होगा? हाँ, मैग्नीज ऑक्साइड नहीं, ये तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स व्हिच आर देयर, है ना आई हैव रिटन इट ऑक्सीजन। आउट। इसमें और अलग अलग भी होगा, बट ये फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कॉमन्स आता है ना, दैट आई हैव प्लेस्ड इट आउट। क्लियर? नाउ टेल मी, if I want to obtain alcohol from aldehyde or ketone, which reaction you're going to do? Whether you're going to do oxidation or whether you're going to do reduction? Reduction. Yes. तो अभी I'm taking, चलो aldehyde लिया. What is the general representation of aldehyde? It is RC double bond OH. बराबर? On the arrow, I'm going to put some oxidizing agent. I can put LiAl4, but वो थोड़ा LiAl4, that is lithium aluminium hydride या sodium borohydride, which is costly, expensive reagent. तो यहाँ पे normal reagents भी आपने use किया, जैसे निकल, तो भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे? See students, try to understand. अगर आपको ये ग्रुप, अभी ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप पे, जहां पे भी कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, अगर वो रिडक्शन हो रहा है, यू आर गोइंग टू प्लेस द ग्रुप CHOH। कार्बोनिल ग्रुप पे क्या रिडक्शन में क्या प्लेस करोगे? CHOH। और उल्टा जाओगे तो C डबल बॉन्ड O प्लेस करना। बट फिलहाल इतना ही याद रखो, C।
तब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट? R will be as it is. Yes or no? It is reduction reaction. तो C डबल बॉन्ड O की जगह पे आप CHOH पुट ऑन कर रहे हो, बट इसके साथ एक और H है वो ऐड किया तो इट विल बिकम CH2OH. तो which alcohol you have got? ethanol. कौन सा मिला? 1 degree. प्राइमरी 1 degree alcohol. अल्कोहल, राइट? तो अल्डिहाइड का आप किसी के भी प्रेजेंस में कर सकते हो. इवन यू कैन डू द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो भी चलेगा, बट अभी फिलहाल ये रिएजेंट भी हेल्प कर रहा है, या प्लैटिनम और पैलाडियम भी यूज किया तो भी वो रिडक्शन रिएक्शन ही है. If I am taking ketone, the general representation of ketone is RC double bond OR. एरो पे आ गया निकल या दे आर प्लेसिंग. चलो अभी यहाँ पे प्लैटिनम और पैलाडियम लेते हैं, क्या मिलेगा आपको? यस, go with this format ना, it will be easy for you. क्या मिलेगा? R will be as it is. Yes or no? हाँ CHOH. CH मैंने यहाँ पे अभी OH आगे दे के नहीं चलेगा, या तो ऊपर लिखो या तो नीचे लिखो CHOH और R is as it is. ये कौन सा अल्कोहल मिला आपको? 2 degree. 2 डिग्री अल्कोहल. 2 degree. यूजुअली अगर अल्डिहाइड कीटोन से आपको जाना है, अल्कोहल प्रिपेयर करना है, इधर यू कैन रिएक्ट देम विथ ये कौन सा वाला रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या अल्डिहाइड कीटोन का अगर आप रिडक्शन करते हो तो भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा. क्लियर? विल सी द एग्जांपल. यूजुअली अब निकल और प्लैटिनम पैलाडियम के टाइम में वी आर नॉट राइटिंग, जब भी दे आर पुटिंग एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फर्दर जाके उन लोग हाइड्रोलिसिस H3O+ लिखते ही है उसके साथ. तो इसके मीन्स इसके आगे कुछ रिएक्शन करना ऐसा नहीं है, यहाँ तक की रिएक्शन स्टॉप होगा. अच्छा. Copy down the example and try to give me the name of the final compounds.
second one? Propane. Propane to all. Very good. It is propane to all या isopropyl alcohol दोनों चलेगा. मुझे पता है C डबल बॉन्ड O की जगह पे ये रिडक्शन ही हो रहा है, reducing agent ही है, तो definitely ये group is going to convert into CHOH और यहाँ पे CH3 आ जाएगा. So it is propane to all या isopropyl alcohol. Yes, Okay, go for the third one. स्ट्रक्चर बताओ, नाम नहीं भी पता चलेगा तो भी चलेगा. नाम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? कोई चेंजेस आएगा ये रिंग में? नहीं, रिंग वैसे नहीं. इट विल बी एज इट इज. यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्लेस करोगे? CH OH बराबर CH3. हाँ, तो अभी नाम ट्राई करो. क्या मिलेगा नाम? दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन. OH यहाँ पे अटैच है तो डेफिनेटली दिस कार्बन इज गोइंग टू गेट फर्स्ट नंबर एंड दिस इज गोइंग टू गेट सेकेंड नंबर. क्या मिलेगा? 1 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड रिंग? Cyclopentane. It is cyclopentane, but it is coming as a substituent, so we are going to call it as cyclopentyl. बराबर? इस पे लेकिन 6 कार्बन है ना, तो इसको रिंग ले सकते हैं ना, मतलब थोड़ा लाउडली मुझे ना आवाज मैम 6 कार्बन है. हेलो यस मैम, ओ साइक्लोपेंटाइल में 6 कार्बन है. 1 2 3 4 5 है ना? हाँ 5. वो नहीं ले सकते फुल. हाँ, वो उसको रिंग नहीं ले सकते. रिंग नहीं ले सकते मतलब उसको आपको बोलना है उसको पैरेंट नहीं ले सकते. हाँ. क्यों नहीं ले सकते उसको पैरेंट? अगर OH ग्रुप इसको अटैच होता ना आपका फंक्शनल ग्रुप, तो वो साइक्लोपेंटेनॉल बनता, मतलब वो पैरेंट बन जाता, फिर उसका E आप रिप्लेस करते. बट अभी क्या हो रहा है, ये चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो दिस चेन इज गोइंग टू बिकम योर पैरेंट. इज इट क्लियर? हाँ, ओके. हाँ, तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है. तो 1 पे साइक्लोपेंटाइल है तो 1 साइक्लोपेंटाइल. नाउ दिस इज माय पैरेंट चेन. चेन कितने कार्बन का बना है? 2 कार्बन. सो इट इज ईथेन, बट E विल बी रिप्लेस्ड बाय all. So the name becomes 1 cyclopentyl ethanol. Is it clear? Yes, miss. Yes, ma'am. Even got the next one. How will you obtain phenyl ethanol from acetophenone? किसी को acetophenone का स्ट्रक्चर याद है? Benzene ring, yes. Attached to double bond O dash CH3. Very good. C double bond O CH3. It is one of the 7 special class of compound which we have studied in 11th standard. क्या करोगे उसको? उन्होंने क्या बोला है? एसिटोफिनोन को कन्वर्ट करना है. They have said phenyl ethanol. I know ethane मतलब कितने कार्बन? 2. तो 2 कार्बन नीचे करना. हाँ, नीचे फिनाइल रिंग आप ड्रॉ कर सकते हो. इट इज फिनाइल. मैम बुक थोड़ा ऊपर लो ना. नहीं दिख रहा है. ओके हाँ, दिख रहा है अभी? हाँ. तो फिनाइल इथेनॉल, राइट? तो फिनाइल लिखा, OH ग्रुप और यहाँ पे CH3 बराबर. तो क्या रिएक्शन किया उन्होंने? एसिटोफिनोन टू फिनाइल इथेनॉल कन्वर्जन किया. तो विच रिएजेंट यू आर गोइंग टू यूज, विच रिएक्शन यू आर गोइंग टू डू? Reduction. Very good, reduction. Just on the arrow you are supposed to put, या तो you put lithium aluminium hydride या निकल चलेगा या कोई भी reducing agent चलेगा. क्लियर? बट स्ट्रक्चर्स क्लियर होना चाहिए. तो ये रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोला? बेंजाइल अल्कोहल फ्रॉम benzaldehyde. ring attached to C double bond O बराबर. और बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग अटैच टू विच ग्रुप? CH2. बेंजोइल रहता तो C डबल बॉन्ड O आता. इट इज बेंजाइल, YL है तो CH2 और OH ग्रुप. इट इज बेंजाइल अल्कोहल. क्या कन्वर्जन करोगे? इधर भी उन्होंने क्या किया? What you have done?
क्या किया कन्वर्जन बोलो, मिस सी डबल थोड़ा बॉन्ड जूम करोगे क्या प्लीज? CHOH लेके आए, तो इवन दिस इज विच रिएक्शन? रिडक्शन. Reduction. Yes, it is reduction. So have you मिस understood? थोड़ा जूम करोगे क्या? हाँ मैं बाद में करूंगी, बट इतना सब रिएक्शन सबको समझा क्या? Yes, ma'am. हाँ, तो with this we have completed with reactions of alcohols. Any doubt you can ask me. It is very easy. Start